आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। I have shared an assignment with you in Google Classroom and it's on 15th or 14th. So do complete the assignment. और किसी को कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट में एक दो स्टूडेंट मैम नेटवर्क नहीं आया लगता आपने। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर मैम। वेट अ मिनट। अब सही आ रही थी मैम। Yeah, it's because of the connection. I'm going to connect with my phone. College connection में बहुत issue होता है। This is fine now. अभी सही आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Okay. Now, any problem with the assignment? किसी को assignment में कोई problem अभी तक? Anyways, किसी को जो भी problem can ask me. Else complete it on time. Okay. Maths की टीचर है। So today I am going to start unit second, which is numerical methods part 2. So numerical methods part 2, in which we will study the numerical solutions of ordinary differential equations using different techniques. तो हमने जो इसका solution है वो did in M1. OD का solution और PD का solution हमने M1 में already पढ़ा था. Now we will solve the equations using the numerical techniques. So total we have here 6 methods for finding the solution of ordinary differential equations. So let's start. Numerical solution of ordinary differential equations. Can anyone of you tell me what are the ordinary differential equations? कोई बता सकता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती है? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशंस बता सकते हो क्या होती है? Am I audible to you? मैम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनका डेरिवेटिव भी साथ में हो, मतलब वो तो dy by dx भी और xy वो भी। वो तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई।
equations which involve dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable. तो जहाँ पे हम एक वेरिएबल की बात करते हैं with respect to single variable तो ordinary होती है, and if with respect to more than one independent variables are there तो वो हो जाती है partial differential equation. partially. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे we will study about the ordinary differential equations. ओके, अब ordinary differential equations को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं, सिंपली अगर उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है तो हमने वो सब M1 में स्टडी करा था. अभी हम इसको करने की न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ेंगे. तो न्यूमेरिकल टेक्निक्स में जो फर्स्ट हमारे पास मेथड आता है, फर्स्ट मेथड इज द Picard's method. It's also known as method of successive integration. Second method is second method for solving is Taylor's method. Third method is Euler's method. Fourth is improved Euler's method or Euler's modified methods. Fifth is Runja-Kutta method. Milnes and predictor PC method. Milnes and predictor character method. Predictor character method, and the last one is Runja-Kutta method, which is also we called it RK method. It's also as a RK method. So we will study these 6 methods for solving the ordinary differential equations. Ordinary differential equation, the simple differential equation which is like dy by dx is equals to f of xy. First order differential equations. So let's start with the Picard's method. सबसे पहले हम ये Picard's method से evaluate कर रहे हैं, and this method is also known as method of successive integration. Picard's method, and it's also known as method of successive integration. So we have first order differential equation here, and it's of the form dy by dx is equals to f of xy, and subject to the conditions conditions जो यहाँ पर हमें initial condition दे रखी हैं, it's equals to f of x naught. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, we simply integrate it, separate the variable, integrate it and apply the limits. So that's why this method is known as the method of successive integration. Simply मैं इसको solve कर रही हूँ.
and taking the limits between x naught to x and y naught to y naught to y, x naught to x. So when we apply and solve it, we will get yx minus y naught, and it's equals to x naught to x f of xy dx. Or we write it like y of x is equals to y naught plus x naught to x fxy dx. This is actually the integral equation form. Now, in order to find out our, because this is the numerical technique, so we will find out the approximations here. So in order to find out the first approximation, the first approximation के लिए जो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, we simply replace y by y naught. In the first approximation, simply replace y by y naught. So we will get first approximation will be denoted by y1 और y को मैंने किससे replace कर दिया है? y naught से. y naught से. इसको evaluate कर लेंगे, we will get our first approximation. प्रॉब्लम में गिवन होगा कि कितने अप्रोक्सीमेशन तक मेरे को इसको evaluate करना है. जैसे जितने भी approximations हम करते जाएंगे, our solution will be modified. So in the next approximation, what we will do, we will use this first approximation in evaluating the second approximation. तो second approximation में मेरे को क्या करना है, ये जो y naught था इसमें we will replace by y1 in the second approximation. Yes, Naveen, any problem? No मैम, वो गलती से हो गया. Second approximation, it's denoted by y2, and we will replace this y naught by y1. This is my second approximation, and in the same way you can obtain up to the nth approximation for the Picard's method. nth approximation में उससे पहले वाला approximation हमारा कौन सा होगा? n-1th approximation. n-1. तो हम क्या करेंगे? We simply replace this y1 by n-1. Okay. So Yes, ma'am. this is very simple method and completely based on the integration करना है सिर्फ और approximation find out करना है. And because the approximation is based on successive integration, that's why the method is also known as the method of successive integration. Yes, any problem? यहाँ तक किसी को कोई problem है? No, ma'am. Okay. Yes. So let's see the problem based on the Picard's method. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है use Picard's method to solve y by dx 1 plus xy. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे एक सिंगल वैल्यू पर इसकी जो कंडीशंस होती है वो प्रेस्क्राइब्ड होती है. अगर एक या एक से ज्यादा पर डिफाइन की जाती है तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है. तो दिस इज dy by dx 1 plus xy with x naught is 2 and y naught is 2, and we have to solve this problem using Picard's method. तो यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम 3 और 4 अप्रोक्सीमेशन तक इवेल्युएट करेंगे. अगर गिवन है नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस कितने निकालना है, दैट इज डिफरेंट थिंग. इफ इट्स नॉट गिवन देन मिनिमम 3 तक तो हमें इवेल्युएट करना होगा.
Is that clear to you? Yes, ma'am. Fine. So first come. Yes. First compare the equation with the given equation. तो यहाँ पे f of x y की क्या वैल्यू है? What 1 is plus x है. f of x y is 1 plus x y. So first I'm going to find out its first approximation. अभी मैंने लिखा था first approximation. Picards में क्या होगा? It's denoted by y1 and it's equals to y0 plus x0 to x fx y0 dx. ये होता है first approximation. Yes, ma'am. Now we have values of x0, y0 and function. It's given here. Okay. So please write down present in the chat box and mention your branch also there. Y1 is equal to y0 is, what is the value of y0 here? 0. 0. X0 is 2. 2 to x, and f of xy is 1 plus xy. Then 1 plus x y. 1 plus x into y0. y0 dx. Is it clear? समझ में आ गया कैसे Yes, करें? ma'am. And it's 2 to x. X is y0 is 0. तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई. And the remaining term is only dx. So my first approximation from the Picard's technique X is minus 2. -2. First approximation. Now I'm going to evaluate second approximation. Second approximation. Means y2. Second approximation is y2 and it's equals to y0 plus. We will use first approximation in this. So y0 replace हो गया है y1 से. y1 से. Clear? Yes. Value of y0 is 0. It's given. x0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है. And value of this is 1 plus x X y1. y1. X means 2.
And y1 we have already evaluated. y1 कितना आया evaluate होके? X minus 2. X minus 2. Now simply integrate it. So it's 2 to x, 1 plus x square X square minus 2x dx, X. or it's x plus x cube by Plus 3 X cube plus minus x X square. square by 2. And limit varies from 2 to x. Clear? Yes, ma'am. It's x plus x cube by 3 minus x square, subtract 2 plus 8 by 3 minus 4. इसको इवैल्यूएट करके आएगा हमारा it's x minus x Plus X cube by 3. plus x cube by 3, और इसको सॉल्व करके आ गया Minus 2 हमारा by 3. Minus 2 by 3 added, ma'am. 2 by 3. So this is my second approximation. Now we will find out the third approximation in the same way. Denoted by y3, and it's equals to y0 plus x0 to x. अब यहाँ पर क्या होगा? Second approximation. Is that clear? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? Now simply substitute the value. y0 की वैल्यू कितनी है? 0. 0. x0 is 2, and it's 1 plus x y2. ये अभी हमने इवैल्यूएट कराई है. 1 plus x minus x square plus x cube by 3 X4. minus 2 by 3 dx. Simply integrate it and you will get the value for the third approximation. And in the same way, you can evaluate the number of approximations using Picard's method. इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, सो हम थर्ड तक इवैल्यूएट कर रहे हैं. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 और 5 तक हमें निकालना है, इससे ज़्यादा तक नहीं आता. मैक्सिमम अप टू 4 अप्रोक्सीमेशन तक पूछ लिया जाता है. Okay. So complete this problem. We simply have to integrate it, and it's equals to x 1 plus X5. square minus x cube x4 by 3. minus 2 by 3 x 2 to x dx. Then integrate it. It's x plus X plus x X cube by 3 3. x4 by X4 by 4. x5 by 15 minus x square by 3. 6. And Ma'am? yes, Yes, ma'am. X square by 2 से 2 cancel हो गया, कोई problem नहीं. हाँ वो plus x cube by 3 minus x4 by 4 x5 by 15 x square by 3 2 plus 8 by 3 16 by 4 32 by 15 minus 4 by 3. Solve it, you get the third approximation. So this is Picard's method for evaluating the solution of ordinary differential equations of first order. Any problem with this method, this technique? No. Clear हो गया सब लोगों को? यस एक या दो लोगों की आवाज आ रही है मेरे को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. बस हो गया.
Anyways, in the next class, we will study Taylor's method. Okay, Taylor's method हम पढ़ेंगे. Taylor's आपने पहले series भी पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना? Now we will solve Yes. the first order ordinary differential equations using Taylor's. इसी same problem को solve करेंगे Taylor series method से. Okay. Okay. Yes, ma'am. और कोई प्रॉब्लम किसी को? मैम यस, मैम जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, उसमें हमने चारों फॉर्मूले से तो आंसर निकाल लिया, पर उनको मतलब वो डिफरेंस को कुछ करना भी है ना, डिफरेंस ये वो करना कैसे है. करेंगे मैम? आपने सारे मेथड्स से निकाल लिया, आप उसका हाँ. एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकालो. सिंपली मैम वो निकालना, मैम वो नहीं निकल रहा है मैम. निकल रहा है. लॉग मैम जैसे उसका, हाँ, उसका बेस ए है ना, तो हम सिंपल log 5.2 माइनस log 4 करेंगे तो वो ही होगा क्या? हाँ, तो मैम वो तो बहुत ऐसे कम आ रहा है. लॉग की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो क्या आ रही है, उसके बाद आप क्या करो, हर मेथड में से उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, जो आपने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला है और जो आपने एग्जैक्ट निकाला है, और जिसमें सबसे मिनिमम आएगा, मतलब 0.000 समथिंग, जो मिनिमम एरर दे रहा है, दैट गिव्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन. मैम जैसे कि ना log 5.2 माइनस log 4 निकाला ना, तो वो तो बहुत कम आ रहा है, 0.113943. आएगा जो भी आएगा. अब आपने जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाला है ना, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द एरर, कि मेरे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कितना एरर आ रहा है. एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेट करना है ना. हाँ, एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेट, इग्नोर द नेगेटिव साइन, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. सारे टेक्निक्स में यही करके देखना, उसके बाद उनमें देखना कि सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, और सबसे ज्यादा जो एरर आ रही है वो किस मेथड में कम आ रही है. ओके, मिनिमम किस में आ रही है, तो जिसमें भी मिनिमम आ रही है वो मेरा एग्जैक्ट के नियर बाय सॉल्यूशन दे रहा है, क्योंकि वो एरर कम प्रोवाइड कर रहा है. जी मैम. ओके, और कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट में प्रॉब्लम समझ में आ रही है? असाइनमेंट इज दैट क्लियर टू यू? Yes. मैम असाइनमेंट Hello, कब तक ma'am. सबमिट करवाना? हेलो मैम. हाँ जी, बोलो. मैम ये क्वेश्चन में आपने x नॉट और y नॉट की वैल्यू तो आपने 2 लिखवाई थी, फिर 0 कैसे ले ली मैम? किसने? Y नॉट की वैल्यू मैम 0 रखी है. वाई नॉट की 0 है. एक मिनट रुको. ट्यूशन में 2 लिखा रखी है. x नॉट 0 है. 0 Y नॉट. y नॉट y नॉट और x नॉट Y नॉट मैम आपने 0 लिखा. वाई नॉट 0 होगा. हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन में चेंज कर दे. क्वेश्चन आपने क्वेश्चन में 2 लिख रखा. हाँ वो चेंज कर दो. हाँ. x नॉट 2 है, y नॉट 0. 0. ओके. मैम एक प्रॉब्लम और है मैम. हाँ हाँ बताओ. मैम जो वो वेडल्स रूल था ना मैम, उसमें जो अंदर वाले कॉस्टिक में अपन जो लिखते हैं ना y0 प्लस 5y6 ऐसा, तो मैम अगर y6 तक गिवन है हमें, तो फिर हम 2y6 प्लस y7 तो है नहीं, तो फिर मैम 2y6 तक लिखेंगे नहीं लिखेंगे? कितनी टर्म्स आ रही हैं? सपोज बेडल्स रूल में आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म ली है. इन केस हाँ. सपोज मैं बेडल्स रूल y6 तक इवैल्यूएट कर रही हूँ, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम लेना है मेरे को, y नॉट प्लस y6, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स लेना है जितनी भी ऑड टर्म्स आ रही है मेरे पास. नहीं सॉरी, फर्स्ट इन द लास्ट ऑड टर्म मींस y1 प्लस y5. ओके, देन y2 प्लस y4 एंड रिमेनिंग मल्टीप्लीकेशन विद 6y3. नो मैम ऐसा था ना, y0 प्लस 5y6 प्लस y2 प्लस 6y3. वो तो आप सिम्पसन्स बता रहे हो. हाँ. बेडल्स रूल का जो फॉर्मूला नहीं था. मैम ये वेडल्स रूल है मैम. अच्छा, बेडल्स रूल में मैं बता रही हूँ. अगर हमें y नॉट से y6 तक लेती हूँ, सपोज जैसे सपोज मैं बेडल्स रूल लिख रही हूँ, मेरे पास जो डेटा सेट है y नॉट टू
बाय 6 तक है, तो Yes, वेडल्स ma'am. रूल मेरा होगा दैट विल बी 3h बाय क्या होगा, जो भी आएगा 10. बाय 10 है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, ओके, प्लस Yes, ma'am. इसके बाद मेरा यहाँ पे y1 है, y5 है, 5 टाइम्स y1 प्लस y5, ओके, देन यहाँ पे y2 है, y4 है, y2 प्लस y4 प्लस 6 टाइम्स ऑफ y3. दिस इज फ्रॉम द वेडल्स रूल. क्लियर? जी मैम. जनरली जो हमारे सिलेबस में है इट्स अप टू सिम्पसन्स 1/3 3/8 रूल, बट हम इससे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं एंड चेक पढ़ लो, पता होना चाहिए, गिवन इन योर बुक. ओके मैम. और किसी को कोई प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम सेट मैंने दिए थे उसमें साथ साथ प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो? डू कंप्लीट द प्रॉब्लम्स एंड सबमिट द असाइनमेंट. असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, ठीक है, सबमिट ऑन टाइम. और मैं एक असाइनमेंट और मैम असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? इट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपलोड करना है, ठीक है. तो मैं एक असाइनमेंट और आपको शेयर करूंगी इन दिस वीक. तो डू कंप्लीट द असाइनमेंट्स ऑन टाइम. यस मैम. क्लियर? और कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट में भी किसी को प्रॉब्लम आ रही थी? इसका मैसेज आया था, अशोक जी हियर. अशोक यहाँ पर है? यस मैम. अशोक, यस मैम. आपको क्लियर हो गया? आपने प्रॉब्लम आ रही थी असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में? जी मैम, लास्ट क्वेश्चन में आ रही थी मैम. हाँ, तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? लास्ट क्वेश्चन में क्या था असाइनमेंट का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या चीज समझ में नहीं आई उसमें? 2 प्लस साइन है मैम उसमें वो पता नहीं चल रहा मैम. स्टार्ट इसमें कैसे जो करना है है उसे? सिम्पसन्स 1/3 रूल है एंड 7 ऑर्डिनेट्स में इसको मुझे सॉल्व करना है. 7 ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया? 7 ऑर्डिनेट्स मीन्स बाय नॉट टू बाय 6. बाय नॉट टू बाय 6 मतलब हो गया टोटल 7 ऑर्डिनेट्स. इसका मतलब मुझे इसे 6 पार्ट्स में ब्रेक करना है. दैट्स इट. इसको अलग तरीके से करना है. तो दिस इज अगेन सेम एज द प्रीवियस वन. 6 पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है एंड देन सॉल्व इट यूजिंग ओनली सिम्पसन्स 1/3 रूल. ठीक है? सिर्फ नंबर ऑफ पार्ट्स ही तो आपको समझ में नहीं आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा ये π/2 - 0 डिवाइडेड बाय 6 π/12. दैट्स इट. और कोई प्रॉब्लम? ओके मैम. नो मैम. नो मैम. ठीक है. सो डू कंप्लीट द असाइनमेंट. और किसी को प्रॉब्लम हो देन आस्क मी. अपनी उस पे लिख देना, व्हाट्सएप कर दो या फिर डायरेक्टली पीपल. ओके. सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे. परसों होगी ना? थैंक यू मैम. टीटी वाले स्टूडेंट्स की थर्सडे को क्लास होती है क्या आपकी? ओके मैम. 10:30 पे. क्या मैम? 10:30 पे कोई क्लास होती है आपकी टीटी स्टूडेंट्स? हाँ मैम होती है मैम. अभी आप 11 बजे हमारी एफएम की है, आप खत्म करो तो हम जावे. हाँ हाँ, चलो ठीक है. ओके.